नमस्कार। सुबह के 10:30 बज चुके हैं। मैं हूं गौरी सिंह, आप देख रहे हैं मेरा नाम। और बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं तमिलनाडु की राजनीति की। आज तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की 73वीं जयंती है। चेन्नई में एआईएडीएमके के पार्टी हेडक्वार्टर में पूर्व सीएम जयललिता की जयंती मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ई पलनीसामी की अगुवाई में एआईएडीएमके के बड़े नेताओं ने पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि भी भेंट की। इसके साथ ही एआईएडीएमके के नेता जयललिता के अब नवनिर्मित स्मारक पर भी जाकर श्रद्धांजलि को अर्पित करेंगे। इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि जयललिता की पूर्व सहयोगी वीके शशिकला टी नगर में ही जयललिता को श्रद्धांजलि देंगी। मिरर नाउ को सूत्रों से पता चला है कि आज शशिकला एक बयान भी जारी कर सकती हैं। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापडी पलनीसामी जयललिता के निर्वाचन क्षेत्र आरके नगर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जहां से टीटीवी दिनाकरन फिलहाल विधायक हैं। चलिए सीधा ले चलते हैं आपको चेन्नई, जहां पर हमारे संवाददाता मुगिलन इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मुगिलन, टुडे इज लाइक अ क्लाइमैक्स ऑफ लॉन्ग ड्रॉन वॉर बिटवीन एआईएडीएमके एंड शशिकला टू क्लेम Jaya's legacy. Tell us what's on agenda. Definitely, yes. The race to appropriate Jayalalitha's legacy intensifies ahead of the elections, and on the day of Jayalalitha's 73rd birth anniversary, we are seeing all the teams gearing up to celebrate Jayalalitha's birthday in a very grand manner and claim that they are the political heirs of Jayalalitha. Early in the morning, we have seen the Chief Minister Edappadi Palaniswamy and the Deputy Chief Minister O. Pannirselvam and all other ADMK senior leaders were thronging the ADMK office, and they were paying their respects to Jayalalitha, and now they will be proceeding towards the Jayalalitha's memorial, where they will be inaugurating the pending structures which for what the memorial was closed. Then they will be heading to another college where they will be unveiling Jayalalitha's statue. Also, on the other hand, now we are seeing Shashikala to make her first public appearance after she returning from the Bangalore Agragara prison. From the day one she came to Tamil Nadu, she has not met anyone, she has not come out of her residence, but today on Jayalalitha's birthday, she will be coming out and paying her respect to Jayalalitha's portrait, which has been set up inside the Shashikala's residence. And after that event, she will be meeting all the important functionaries of AMMK, and this is the first time she will be meeting the party functionaries from AMMK also. So this gains significance ahead of the elections, because there are several disgruntled leaders and cadres in ADMK also. So the strategy to move in them to the AMMK fold or to galvanize the support within the AIADMK, Shashikala will be making strategies along with her, along with the office functionaries during the meeting today. And as far as TTV Dinakaran is concerned, after this event, he will be proceeding to AMMK, and where he will be garlanding Jayalalitha's portrait and paying his respect. So all the three factions, that is AIDMK, Shashikala and TTV Dinakaran, are in a race to claim or to appropriate Jayalalitha's legacy ahead of the assembly elections. On the day one, on the day when Shashikala was returning to Tamil Nadu, we have seen the kind of reception she got all around from Karnataka to Tamil Nadu, but still ADMK here maintained that Shashikala is no one in ADMK, she has no stakes in ADMK, and she is an outsider to ADMK. But TTV Dinakaran and Shashikala still claim that Shashikala is the General Secretary of the party, and they will continue the legal fight to retrieve ADMK from the present leadership. And more importantly, the petition which was moved by Shashikala in 2017 will be taken up for hearing next month on March 15th. So that petition will be a deciding factor also. So before all these things happen, now we are seeing Shashikala meeting her party functionaries and important sympathizers to galvanize support for her and to strategize for the upcoming assembly elections. राइट मुगिलन, स्टे विद अस। अपने दर्शकों को बता दें, ये जो दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इस समय दिखा रहे हैं वो आखिर है क्या। एक तरफ ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप इससे पहले ईपीएस और ओपीएस गए थे एआईएडीएम के दफ्तर, और वहां पर उन्होंने पूर्व तमिलनाडु सीएम जयललिता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। अब वो दोनों ही जयललिता स्मारक के लिए निकल चुके हैं, और वहां पर भी समारोह का आयोजन किया गया है, और वहां पर भी जयललिता को याद किया जाएगा। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी जुट रहे हैं समारोह में। और दूसरी तरफ जो लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो
वो है शशिकला के घर की तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर भी पूरी की पूरी तैयारी है। जयललिता को याद करने के लिए लोग इकट्ठा हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ ही देर में जयललिता की पूर्व सहयोगी शशिकला यहां पर पहुंचेंगी, जयललिता को याद करेंगी और उन्हें श्रद्धांजलि देंगी और साथ ही साथ एक बड़ा बयान भी जारी कर सकती हैं। आपको ये भी बता दें, जैसा हमारे संवाददाता मुगिलन हमें बता रहे थे कि जेल से निकलने के बाद ये शशिकला का पहला पब्लिक अपीयरेंस होगा, तो सभी की नजर बनी हुई है इस बात पर कि आखिर शशिकला इस इवेंट पर, इस मौके पर क्या कुछ कहती हैं। आपको बता दें कि ईपीएस ओपीएस खेमे और शशिकला की जो टीम है उनके बीच में लगातार जयललिता की लेगेसी को, उनकी राजनीतिक विरासत को अपनाने के लिए एक होड़ मची हुई है और लगातार ये पूरा का पूरा मामला अब कोर्ट में भी जा पहुंचा है। और आज जयललिता का जन्मदिन है और ऐसे मौके पर दोनों ही खेमों की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरे मौके को भुनाया जाए और जयललिता की जो राजनीतिक विरासत है उसको अपनाने की कोशिश की जाए, वोटर्स को ये संदेश देने की कोशिश की जाए कि आखिर जयललिता के ज्यादा करीब, उनसे ज्यादा लॉयल आखिर कौन था। तो ये सब कुछ इस समय फिलहाल दिखाई दे रहा है तमिलनाडु में। मुगिलन हमारे साथ बने हुए हैं। मुगिलन, आई ऑल्सो वांटेड टू हाईलाइट दिस पर्टिकुलर फैक्ट दैट सीएम एंड डेप्यूटी सीएम ईपीएस एंड ओपीएस actually came together and paid tribute just a short while from now, and basically a clear message is being given by EPS and OPS that when it comes to tackling Sasikala's challenge or claim over Jaya's legacy or party leadership, they will stay united. Definitely, yes. We have seen the top leadership of ADMK, especially EPS, have started taking TTV Dinakaran and Shashikala head on. Because even though EPS have not mentioned Shashikala's name anywhere so far, but he has started taking TTV Dinakaran head on, and that is why, as a sign of taking TTV Dinakaran head on and sending a message, today EPS will be addressing a public meeting at RK Nagar constituency where TTV Dinakaran is the sitting MLA, and more importantly, when TTV Dinakaran was appointed as a important party functionary, when Shashikala was the general secretary, we saw TTV Dinakaran contesting from the elections, and that election was rescinded due to cash for vote scams. Then TTV Dinakaran formed his party, contested there as an independent, and he won the election and pushing the ADMK to third place. So yes, TTV still enjoys the sympathy of Jayalalitha, but to break that perception and image, now we are seeing ADMK putting in an additional effort to portray that they are, that is EPS and OPS, are the political hats of Jayalalitha, and that is why, as a symbolic gesture, now we are seeing EPS are calling for a public meeting at the RK Nagar, and around 6 p.m. today, EPS will be addressing a public meeting in RK Nagar constituency ahead of the elections, and this will be the very important first public meeting that will be that will be addressed by EPS in Chennai for the first time. Right. Because so far in Chennai there is no public Right. meeting has been called, and now this is the first meeting that will be organized in RK Nagar, and EPS will be addressing there. राइट, मुगिलन स्टे विद अस। अपने दर्शकों को बता दें कि जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, शशिकला इस समय मौजूद हैं अपने ही घर पर और देख सकते हैं आप किस तरीके से उन्होंने अभी पूर्व सीएम जयललिता को याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी। ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं शशिकला के घर से, जहां पर ये पहला पब्लिक अपीयरेंस है शशिकला का जेल से निकलने के बाद, और किस तरीके से जयललिता के जन्मदिन पर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनके घर पर एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनकरन भी उनके साथ मौजूद है और पूरी तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि शशिकला इस मौके पर एक बड़ा बयान भी दे सकती हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं शशिकला के घर से। आपको बता दें, शशिकला जब से जेल से बाहर आई हैं तभी से एआईएडीएमके पर अपना हक जताती हुई नजर आई हैं। लगातार बयान भी दिए उन्होंने कि वो राजनीति में रहेंगी और एआईएडीएमके का जो उनका पद था वो भी उनको वापस किया जाए। ये पूरी की पूरी लड़ाई अब कानूनी रुख भी ले चुकी है। कोर्ट में इस समय ये मामला लंबित है। शशिकला की जो याचिका है उस पर मार्च में सुनवाई भी करेगा कोर्ट, मगर उससे पहले आप देख सकते हैं जयललिता के जन्मदिन के मौके पर किस तरीके से ईपीएस ओपीएस खेमा और शशिकला की जो टीम है वो आमने सामने है। शशिकला के घर से ये ताजा तस्वीरें आ रही हैं जहां पर शशिकला ने अभी पूर्व तमिलनाडु सीएम को श्रद्धांजलि दी, उनको याद किया। आपको बता दें, इससे पहले कुछ तस्वीरें आई थी, तमिलनाडु के सीएम और उप मुख्यमंत्री दोनों ही पार्टी दफ्तर पहुंचे थे और जयललिता को उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी थी, और अब वो दोनों ही जयललिता स्मारक का रुख कर चुके हैं। वहां पर भी जाकर एक समारोह का आयोजन किया गया है, वहां पर भी जयललिता को याद किया जाएगा। और यहाँ पर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से शशिकला के घर में भी समारोह का आयोजन किया गया है। टीटीवी दिनकरन भी उनके साथ हैं, कई अन्य नेता भी मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में ऐसी उम्मीद की
जा रही कि शशिकला एक बयान भी दे सकती हैं। जब से जेल से बाहर आई हैं तब से उन्होंने इतनी ही बात कही है कि वो राजनीति में ही रहेंगी। उसके बाद से कोई उन्होंने बड़ी घोषणा नहीं की है और इसीलिए सभी की नजर शशिकला पर बनी हुई है कि आज जयललिता के जन्मदिन के मौके पर क्या शशिकला कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं। और ये तस्वीरें आ रही हैं, ताजा तस्वीरें आ रही हैं शशिकला के घर से। जी, शशिकला के ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है। हम वापस अपने दर्शकों को लेकर चलेंगे और शशिकला के घर पर, जहां पर शशिकला अपना एक बयान दे रही हैं। आपको बता दें ये पहला पब्लिक अपीयरेंस है उनका जेल से छूटने के बाद और जाहिर सी बात है जयललिता का चूंकि आज 73वां जन्मदिन है, ऐसे मौके को भुनाने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है ईपीएस ओपीएस खेमे और शशिकला के खेमे दोनों की तरफ से। और शशिकला इस समय एक बड़ा बयान दे रही हैं। जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से भी ताकि ये समझ सके कि आखिर शशिकला क्या कुछ कह रही हैं इस वक्त। आपको बता दें कि इस समय टीटीवी दिनकरण जो शशिकला के भतीजे हैं और एएमएमके के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो भी इस समय शशिकला के साथ ही मौजूद हैं, उनके साथ ही खड़े हुए हैं। और ईपीएस ओपीएस यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री भी जया स्मारक का रुख कर चुके हैं। மீண்டும் தமிழகத்தில் 100 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகவும் நம்முடைய ஆட்சி இருக்க வேண்டும் என்று கூறி சென்றுள்ளார். அதை மனதில் நிறுத்தி நம்முடைய உடன்பிறப்புகள், புரட்சி தலைவியின் உடன்பிறப்புகள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து இந்த தேர்தலில் அமோக வெற்றி பெற்று நாம் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய எண்ணமாகும். அதை செய்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கையும் எனக்கு உள்ளது. ஏனென்றால் நீங்கள் புரட்சி தலைவியின் உண்மை தொண்டர்கள். நிச்சயமாக இதை செய்வீர்கள், நானும் உங்களுக்கு துணை இருப்பேன் என்பதை அன்போடு தெரிவித்து நன்றி கூறுகிறேன். வணக்கம். மேடம், ஃபியூச்சர் பிளான் பத்தி சொல்லுங்க மேடம். ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் விரைவில் நான் தொண்டர்களையும் பொதுமக்களையும் சந்திக்க வருவேன் என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். हमारे साथ जवाहर नाडर इस समय हमारे सहयोगी हमारे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम सुन पा रहे थे जवाहर, शशिकला ने साफ कर दिया कि उनसे जब फ्यूचर प्लान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। हालांकि उन्होंने अपने समर्थकों को जरूर शुक्रिया कहा है। हाँ गौरी, जैसे हमने देखा कि कुछ दिनों से ईपीएस ओपीएस खेमे में और शशिकला और टीटीवी के खेमे में कई दिनों से विवाद चल रहा था कि ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम का जनरल सेक्रेटरी जो है कौन रहेगा। तो आज शशिकला ने आज उनके जन्मदिन पे बात साफ किया है कि आने वाले समय में वो अपनी जो पूरी जो रणनीति है या जो उसके जो भी पॉलिटिकल स्टेप्स हैं उसके बारे में क्लियर करेंगी। तो उन्होंने कहा है कि आज जयललिता जी का जो जन्मदिन है उसको मनाने के आज शुभ अवसर के समय पे उन्होंने ये कहा है कि मैं आने वाले समय पे अपना जो है नेक्स्ट जो पॉलिटिकल स्टेप उसके बारे में, और मैं धीरे धीरे करके जो हमारे जो कार्यकर्ता है, जो मुख्य कार्यकर्ता है या जो हमारे सपोर्टर्स है उनको मिलेंगे और उसके बाद इस प्रकार से चुनाव के बारे में जब तमिलनाडु में जब चुनाव घोषित किया जाएगा उसके बाद उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा या उसके बारे में कुछ सोचा जाएगा। तो आज उन्होंने कुछ खास खुलासा फिलहाल तो नहीं किया है गौरी। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ जैसा कि हमारे संवाददाता भी लगातार हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से शशिकला ने ये भी कहा है कि ऐसे मौके पे एआईएडीएमके को साथ रहना चाहिए। ये एक बड़ा बयान है। इससे पहले भी उन्होंने इस तरह की अपील की थी कि चूंकि चुनाव आने ही वाले हैं और ऐसे में विपक्ष का सामना करने के लिए ज़रूरत है कि एआईएडीएमके में जो यूनिटी है, जो एकता है, वो बनी रहे।
हाँ गौरी, देखिए इस बात पे शशिकला और टीटीवी के जो कार्यकर्ता है, जो उनके जो पार्टी के पक्ष के लोग हैं, वो शुरू से ये बात कह रहे हैं। लेकिन ईपीएस और ओपीएस जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, उन्होंने इस बात को साफ किया कि इन दोनों के लिए, इस पार्टी में एआईएडीएमके पार्टी में दोनों के लिए कोई भी जगह नहीं है और किसी भी कीमत पर वो इन्हें नहीं लेंगे। तो उनका इस बात पे साफ कहना है कि जिस प्रकार से ईपीएस और ओपीएस खेमे ने शुरू से ही जो एआईएडीएमके के जो पार्टी है, जो उसके जो जनरल सेक्रेटरी के जो पोस्ट है, जो उसकी जो हेड थी, उनको नहीं, पहले से ही उन्होंने खारिज कर दिया। और उसके बाद उन्होंने ये साफ कर दिया कि उस पोस्ट में किसी के लिए कोई भी जगह नहीं है, ना वो पोस्ट अब इस पार्टी में रहेगा। और लेकिन दूसरी जगह हमने देखा है कि शशिकला और टीटीवी बार बार यही कह रहे हैं कि हमें एक साथ आना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। लेकिन ईपीएस और ओपीएस खेमे के लोग हैं, वहाँ के जो मंत्रीगण हैं, जो बाकी के लोग हैं, वो इस बात पे एकदम साफ है, उनका निर्णय साफ है कि टीटीवी और शशिकला दोनों के लिए एआईएडीएमके में अब कोई भी जगह नहीं है। गौरी, बिल्कुल। और साथ ही साथ हम अपने दर्शकों को चलिए सुनते हैं, टीटीवी दिनाकरन इस समय कुछ कह रहे हैं। He is also telling the same thing. All Amma's children should unitedly fight for to stop DMK to come back to power. Sir, is this a message to ADMK leaders? That- Is this a message to ADMK leaders also to come forward and work with you for assembly elections, sir? No. Sir, will you be going? Wait. It is the message to all Amma's cadres, followers. Sir, any plans of visiting the memorial today? No plan. Why isn't there, like, they are opening it for like inauguration of the museum? No. Normally, on her birthday, we will not go to her memorial. Only on that And memorial also, day. her statement seems to be very small, but at the same time, she did not speak about EPS, OPS or any faction war. Does it mean patch-up work is going on? She is talking only about the cadres of Amma. They all should be unitedly work for the election in order to defeat our arch rival DMK. That's all. What about ADMK, sir? What is the She status? she only mentioned about the Amma's cadres. You can take it in any way. I am not responsible for that. So how do you go about the elections, sir, now? Like, Let me go to my office and I have to. I will meet you there. Sir, you're calling DMK as arch rival, so what would you call ADMK as? You should give us a word, right? Nemesis? This is the answer. Please. thank you. दिनाकरन एएमएमके के सचिव जो कि ये बड़ा बयान दे रहे थे कि पूरी तरीके से जो शशिकला ने कहा था उसी में हाँ पे हाँ मिला रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये ज़रूरत है कि एआईएडीएमके चुनाव से पहले एकजुट रहे और साथ मिलकर जो विपक्ष है डीएमके उसको हराने पर ध्यान दे। ऐसी ही बात शशिकला ने भी कही थी अब से कुछ देर पहले जब उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। जवाहर नाडर हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। तो जवाहर, जैसा कि शशिकला ने कहा था वही बात दोहराते दिनाकरन भी नजर आए कि ज़रूरत है कि एआईएडीएमके एकजुट बनी रहे चुनाव से पहले और विपक्ष का मुकाबला करे। मगर एक और खास बात जो दिनाकरन ने कही है वो ये है कि पैचअप जैसी कोई बात अभी तक फिलहाल नहीं है ईपीएस ओपीएस खेमे और शशिकला के बीच में, और साथ ही साथ जो जया मेमोरियल में जाने की अटकलें थीं उनको भी सीधे तौर पर दिनाकरन ने नकार दिया है। हाँ गौरी, जैसे हमने देखा है कि शशिकला और टीटीवी जो है शुरू से ये कह रहे हैं कि दोनों खेमे जो जैसे एआईएडीएमके के जो पूरे कार्यकर्ता उनको एक साथ आकर डीएमके का मुकाबला करना चाहिए। लेकिन जैसे हम भी देख रहे हैं कि दूसरी तरफ से ईपीएस ओपीएस इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं। इसमें यह देखा गया है कि जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी की जो पोस्ट है उसको लेकर ज़्यादा इन दोनों में ज़्यादा जो जैसे हम कहते हैं कि दोनों में जो विश्वास नहीं है या दोनों में जिस प्रकार से जो एक सहमति नहीं बन पा रही है वो है जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पोस्ट के लिए, क्योंकि ईपीएस और ओपीएस के खेमे ने वो पूरी तरीके से निकाल दिया है और शशिकला ये चाहती है कि उसे जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट मिले और उनका आज भी यही कहना है कि जनरल सेक्रेटरी मैं ही हूँ। और जहाँ दूसरी जगह हमने देखा था कि मेमोरियल की जो बात है जहाँ पे जयललिता जी को रखा गया तो वहाँ पे शशिकला टीटीवी ने ये साफ कह दिया कि शशिकला अब नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ अब ईपीएस और ओपीएस और बाकी के एआईएडीएमके के कार्यकर्ता वहाँ जाने वाले हैं। तो जिस प्रकार से टीटीवी ने देखा है कि जो भीड़ है, जैसे हम देख रहे हैं कि आज भी जो ज़्यादा एआईएडीएमके के जो कार्यकर्ता हैं या जो सपोर्टर्स है वो ईपीएस और ओपीएस के साथ
बहुत ज़्यादा। और जैसे हमने देखा है कि दोनों बाजू में जिस प्रकार से जो जयललिता की जो आज जन्मदिन को जिस प्रकार से मनाया गया है, दोनों पक्ष में ये देखा जा रहा है कि ईपीएस और ओपीएस की तरफ से काफ़ी एक बड़े पैमाने पे मनाया गया, और टीटीवी और शशिकला के घर पे जो मनाया गया वो काफ़ी एक सहमा सा हुआ, एक जैसे हम कहते हैं कि काफ़ी एक लो की फंक्शन था। तो आने वाले समय में अब ये देखना है कि शशिकला पॉलिटिकली किस प्रकार की स्टेटमेंट इशू करती है। गौरी जी बिल्कुल, सभी की नज़र इस बात पर रहेगी कि आखिर शशिकला का अगला कदम क्या हो सकता है। फिलहाल जवाहर, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि आखिर तमिलनाडु की जो राजनीति है और ख़ासकर अम्मा की जो राजनीतिक विरासत है उसके ऊपर जो छिड़ी जंग है वो आखिर किस ओर जा रही है। जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि लगातार आप देख सकते हैं ईपीएस ओपीएस का खेमा है वो भी पूरी कोशिश कर रहा है। जो आज का दिन है, आज का मौका है, भावुक क्षण है अम्मा के लाखों समर्थकों के लिए, उसको पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहा है, बड़े बड़े समारोह का आयोजन कर रहा है। वहीं दूसरी ओर शशिकला ने अपने घर में ही रहकर दिनाकरन के साथ अम्मा को श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया और साथ ही एक बड़ा संदेश फिर से दिया कि जरूरत है कि चुनाव से पहले पार्टी एकजुट रहे। ये बात शशिकला पहले भी कह चुकी हैं और एक बार फिर से उन्होंने दोहराया है। हालांकि जब शशिकला के भतीजे दिनाकरन से पैचअप के बारे में बात की गई कि क्या आखिर शशिकला और ईपीएस ओपीएस खेमे के बीच में कोई भी पैचअप होने की संभावना है, उसमें उन्होंने कोई भी साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई भी बात फिलहाल नहीं चल रही है। आपको बता दें फिलहाल ईपीएस और ओपीएस दोनों ही जया मेमोरियल का रुख कर चुके हैं। वहां पर भी आयोजन किया गया है एक समारोह का, वहां पर भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। मगर दिनाकरन ने यह साफ कर दिया है कि शशिकला या फिर उनके समर्थक आज जया मेमोरियल नहीं जाएंगे। उन्होंने घर में ही रहकर जयललिता को याद करना और उनके जन्मदिन को मनाना